बहुत पेशेंट आते हैं कि हमने ये दवाई खा के हम आ गए, अब उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो दवाई से ना वो सिम्टम दब जाते हैं। Thinking of getting a ear candling done, is it just a scam? सॉरी क्लास लो रही है क्या? नहीं बताओ कि अरे ये सारे बच्चे एडेनॉइड फेसेस हैं। कहते डॉक्टर आप हैं। और आजकल ईयर पेन, नोज ब्लीड्स, स्नोरिंग, ईयरफोन्स, पोल्यूशन, साइनस, टॉन्सिल्स, ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स किड्स और एडल्ट्स दोनों में रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। पर पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता कि क्या नॉर्मल है और क्या सीरियस है। क्या ईयर डिस्चार्ज डेंजरस होता है? क्या ईयरबड सेफ हैं? किड्स का स्नोरिंग क्यूट है या कंसर्निंग? और AQI एलर्जीज के रियल इम्पैक्ट क्या हैं? I am Dr. Gaurav Nigam, and today I have guest Dr. Ashima Chopra, a leading ENT specialist and an endoscopic surgeon, to answer these. Today's episode is for healthy moms and dads and healthier children. Let's start. Hi Ashima, and thank you for being here today. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डॉक्टर गौरव। So, हम ना ENT के पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, which is ear, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। the most important one. And when I talk about ear, I want to start with ear aches, जो बच्चों में बहुत कॉमन है। बच्चों को ear ache हुआ, let's say, and how do I know which ear ache is serious versus not so serious? कि चलो wait करते हैं। How do I know that? So, firstly, thank you for clarifying the first letter of ENT. Because funny, but I get a lot of calls saying that मैम मेरी एज में दिक्कत हो रही है, can you help me? And I have to clarify that it's a ear, nose, throat clinic. Coming to your actual question, for kids, all earaches are serious. If the child complains of an ear block, or rather you feel that they can't hear properly, और you feel कि या बच्चा बोलता है कि मम्मा सुना ही नहीं दे रहा है या पापा सुना ही नहीं दे रहा है, that is sometimes can be just due to wax. But if they complain of pain, it is always serious, should always be checked. Because if it has reached the level of the child noticing and complaining that they have pain, that means it's most probably something more sinister going on inside. 90% probability an infection that's happening. Because बच्चे इतने छोटे होते हैं, उनको realize नहीं होता है कि क्या हो रहा है. An adult might notice कि कान बंद हो गया, मुझे कम सुनाई दे रहा है या कान भारी लग रहा है। जब तक दर्द से पहले these symptoms happen before a earache starts. Right. So this happens in a child also, but the child doesn't notice or doesn't register कि there is a change. They only register when they have an acute pain. And very typical history होता है, बच्चा रात को उठता है 2 बजे 3 बजे कि बहुत दर्द हो रहा है, they get up screaming with pain. And definitely at that time a painkiller is the first thing to do at home, but you should always get it checked by your doctor to rule out any ear infections, and then it has to be treated accordingly. Right. A lot of time this ear pain is accompanied by ear discharge, कि कान से कुछ निकल रहा है, कुछ fluid सा निकला है, या फिर पिलो गीला हो गया है थोड़ा when they are waking up. How serious is that? क्या वो भी ऐसी कंडीशन है कि हाँ अगर वो है तो 100% डॉक्टर के पास जाओगे? वो ऐसी कंडीशन है कि आपकी सीरियस कंडीशन पार हो चुकी है. Okay. Okay. So to explain or to get into the history of ear infections, it starts with feeling कि ear block हो गया, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, and then there's an acute stage of pain. Right. So we all know कि एक हमारा ear drum एक पर्दा होता है, and when that gets infected or gets filled with pus, there's pus behind the eardrum, वो फूल जाता है, it becomes like a balloon filled with pus. That's when the child has pain. So that's already an acute stage or a serious stage where you should start antibiotics and you should get it evaluated and proper medication along with the antibiotic. जब वो stage cross हो जाती है, तो the body, if untreated at that stage, the body will try and push the pus out. Usually results in the eardrum perforation. Oh, okay. कि पर्दा फट गया. Okay. और जब वो फट जाता है, तब हमारे कान में से पानी आता है बाहर. Okay. So if that has happened, that means that the worst has already happened. Oh, yeah. I mean, yeah. पर्दा फट गया, फिर उसको हील करने में आपका और लंबा प्रोसेस है. Okay. So before that stage happens,
हमें बच्चे को पहले ट्रीट करना है. उनको कोल्ड होता है, एनी फॉर्म ऑफ वायरल और कोल्ड इन अ चाइल्ड मस्ट बी ट्रीटेड. You cannot let it go untreated. Be it slight sniffles also, be it mouth breathing. It has to be fixed before it translates into a severe ear infection. Right. But you know, a lot of times this cough and cold is because of viral infections, right? Absolutely. I mean, a lot of times, I think I would say rather 90% of time. So, mostly the treatment is या तो हम उसमें antihistaminics दे देते ताकि थोड़ा सा वो हो. But antibiotic का रोल जनरली हम रिजर्व करके रखते हैं ताकि only when Absolutely. it's needed. बट you're saying कि हमें इस पे बहुत cautious रहना है ताकि ये ईयर इन्फेक्शन में ना कन्वर्ट हो जाए. Correct. सो हाउ डू वी डू दैट? हाउ एज अ पेरेंट मैं ये कैसे करूं? तो आपने ये बिल्कुल ठीक बोला that whenever it's mostly viral, the sniffles are usually a viral, which is true. But at that time, not treating the viral. So Definitely not treating means not giving an these medicines like what we're yeah, talking about. an anti-allergic or whatever, some basic supportive medication अगर उस टाइम पे नहीं दिया जाए, इग्नोर किया जाए, 100% probability will convert into an ear infection. Oh, okay. Especially these days, the viruses have really caught on, mutated. I don't know if they're fighting with the COVID virus, but they really want to infect the ear. Yeah. So you must treat any sniffles with the medicines like you mentioned. Right. Again, even sometimes despite treating, there is still a 30%, 40% chance that it does convert into an ear infection. Okay. So yes, close watch in the ears, a close vigilance and ear checkup for the child is a must. Okay. Also, you know, आपने बताया कि वो पर्दा फट जाता है, the eardrum kind of ruptures, है ना? एक ना एक जनरली आई एम प्रीटी श्योर एवरीवन सिटिंग इन द स्टूडियो आल्सो ये लगता होगा कि अगर eardrum फट गया ना तो हम बहरे हो जाएंगे उस साउंड से. We won't be able to hear, like listen things. तो मतलब कैन यू जस्ट क्लियर दैट कि हाँ ऐसा एग्जैक्टली ऐसा पूरी तरीके से नहीं होता. मे बी देयर some degree of hearing loss that happens for the time being. Yeah, so eardrum perforation से usually 35% hearing loss हो जाता है. Okay. And होता है. Well, Obviously because अगर obviously. conduction नहीं होगा तो you will And it gets healed. So acute stages में वो heal करता है, especially in kids, because kids का immunity and regenerative power is so strong that it will heal up. But जो heal होके eardrum बनता है ना, it is not as strong as what the original eardrum was. And it is a very irregular tear, Right. है ना, as compared to a surgical tear. There is a big difference in how it heals up. So it is definitely much weaker. हाँ, आपका हियरिंग ठीक हो जाएगा. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाएगा. इट्स नॉट परमानेंट, इट्स टेम्पररी. It will recover. But there are far-reaching consequences of what has happened. Those consequences you don't see in the next 2 years. You'll probably see in the next 10 years. Okay. What are the आप sort of भूल भी चुके consequences? होगे कि आपको हुआ था. So, you know, then your eardrum is very prone because पतला हो जाता है. जब वो heal होगा, so suppose जब आपका scar होता है, a scar is never as strong as your original skin. उसमें collagen fibers disrupted होते हैं, वो इतना stretched नहीं होती है. So, अंदर eardrum is already so thin. आपका 0.1 mm thinness उसकी already है. वो heal होके और पतला हो जाएगा. Whenever you have a cold, your ear gets affected with just cold. I'm not saying infected, but it can get affected with a viral illness also. वो eardrum retraction हो जाएगा, उसका फिर से फटने का chance हमेशा बड़ा रहेगा. Okay. There are a lot of changes that can I got your happen. point. Yeah. So, if possible, हमेशा वो चीज़ prevent करी जानी चाहिए. Correct. You know, another thing that comes to ear is the wax and earbuds का usage. तो a lot of people they use earbuds like as a routine कि हाँ रात को अब सोने से पहले हम earbud use कर लेंगे. And दो questions हैं मेरे इसमें. एक तो ear wax को कैसे साफ करना चाहिए, especially in kids and even in adults. And should the usage of earbuds be completely avoided? So, पहली बात, earbuds should be not called earbuds. They're now called Q-tips. I always tell my patients, आप उनको Q-tips बोलो. Okay. First of all, उसमें से ear चला जाता है. Correct. Use it for removing makeup. Gift it to your wife or your daughter. Don't ever use it. You can, how to clean ears. Earwax is something जो एक बहुत natural phenomena है. सबका होता है.
when you're chewing or you're talking or you're having a bath, that wax just gets pushed out and वो अपने आप गिर जाता है. We don't realize what's happening. And so if you want to really clean your ears, cleaning the outside and behind the ears you can do with your towel or whatever handkerchief. Inside should never be cleaned. Okay. The skin inside is extremely thin. बहुत फ्रेजाइल पतला सा स्किन होता है. कुछ भी हम उस पे मारते हैं तो वो टेयर हो जाता है. वेरी इजीली ब्लीडिंग हो जाती है. एंड देन पेशेंट्स कम टू मी कि हमने साफ किया और ब्लीडिंग हो गया. एक तो सो अंदर जो हमारा ईयर कैनाल होता है दैट इज ऑल्सो नॉट स्ट्रेट. वो भी कर्व्ड है. So sometimes you're hitting the bone, sometimes you're hitting somewhere else and is going to cause pain and injury. I once had a patient who came to me. कहते मैं बात कर रहा था, साथ साथ क्लीन कर रहा था, फोन रखा हुआ था, फोन उठाया and somehow phone गिर गया. So he bent down to pick up the phone and the bud went full inside. Casual mishap can happen, but his eardrum tore. Okay. वो पूरा फट गया. अब hearing loss होना था, bleeding होना था. Then how to fix it? That is another long process. So now you can't travel when you have a perforated drum. You can't swim. Lot of restrictions come into play, and healing takes a good Amount of time, yeah, absolutely. So unnecessary. If you want to avoid that trauma and that pain to your body, simple thing, मत clean करो आप. ठीक है. You can put ear drops, जो wax drops होते हैं, and then go to a doctor for cleaning. Okay. It's super quick when you're just visiting for a regular cleanup. It's super quick, maybe 5 minutes, 10 minutes, and you're out of the What's door. the protocol like? मैंने रात को 2-3 drops डाल लिए and like after that I sleep and next day I go to a ENT for a cleanup. So probably put the drops 2-3 times before visiting your doctor. Like 2-3 times before. Of drops. Yeah, in the night. So drops you can put 2 to 3 times in the day also. Oh, okay. हाँ, आप 3 बार भी दिन में डाल के जाओगे, it's enough. ठीक है. Okay. तो आपने 3-4 बार डाल लिया आपने drops and then the following day you go to an ENT. Yes. तो like to be honest, I don't know how common it is that people are going. I know a lot of people do go for clearing up the wax to ENTs, but a lot of people don't. तो एज अ रिकमेंडेशन क्या है, मतलब कराना ही चाहिए सबको? नहीं. सो सबको भी प्रॉब्लम नहीं होती है. नॉट एवरीबडी इज जेनेटिकली प्रोन टू गेटिंग वैक्स अक्यूमुलेशन. सम पीपल जिनको दिक्कत होती है कि जम जाता है या बहुत ड्राई वैक्स है, तो उनको पता होता है कि मुझे नहीं सुनाई दे रहा, मेरा कान ब्लॉक हो गया, आई हैव टू गेट इट क्लीन्ड. एंड दे यूजुअली देयर इज अ साइकिल. इट विल बी इधर मंथली, 6 मंथली, ईयरली. दे विल नो कि मुझे जाना है. जिसने कभी नहीं कराया, उनको कभी ईयर ब्लॉक हुआ नहीं, कभी हियरिंग लॉस नहीं हुआ, दे प्रॉब्ली डोंट नीड अ प्रोफेशनल क्लीनिंग. योर ईयर्स आर जस्ट सेल्फ क्लीनिंग. राइट. 80% ऑफ द पॉपुलेशन सेल्फ क्लीनिंग ईयर्स होते हैं, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता एक्टिवली. राइट. बट फॉर पीपल हु आर गेटिंग हियरिंग लॉस या कान बंद हो गया, सो वेरी टिपिकल हिस्ट्री, अगर किसी को पता भी ना चले, कभी स्विमिंग गए या शावर किया एंड उसके बाद सडनली कान बंद हो गया. ओके. सो यूजुअली वाटर जाने से वैक्स फूल जाता है एंड सडनली कान बंद हो जाता है. सो देन दे रियलाइज कि अरे कान बंद हो गया मुझे. उस टाइम पे फिर वो बड्स मारते हैं. ओके. या और वो वैक्स निकलता तो है नहीं बड से, वो और पुश हो जाता है. इट्स इमेजिन इफ दिस इज द कैनाल, वो और अंदर अंदर जाए जा रहा है, आप उसको खींच नहीं पा रहे हो. और आप मेम्ब्रेन से और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. एग्जैक्टली. एंड इतना डीप वैक्स कभी नहीं होता. वैक्स इज ओनली ऑन द आउटसाइड, राइट. but you're pushing it deeper inside and it's getting stuck. And then when you come to me, it's more problematic for me to take that out. Yes. So put drops and come in for a clean. एक चीज बोली आशिमा, you said in between that बहुत ड्राइड हो जाता है वैक्स एंड ऑल. क्या हाइड्रेशन, मैं कितना पानी पीता हूँ, इससे फर्क पड़ता है इस चीज पे जनरली? So wax again is very genetic. There are 2 types of wax, dry wax or wet wax, which is genetically determined. ओके. आपके हाइड्रेशन से, आपके पानी पीने से, आपके कुछ भी करने से नहीं फर्क पड़ेगा. वो आपका बॉडी का टेंडेंसी है. वो एक्चुअली आजकल सब चीजों का आंसर इसी पे आ जाता है ना, Hydration. हाइड्रेशन. तो मेरे को लगा क्या पता, यू नेवर नो. ओके. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क वाज अबाउट फॉरेन बॉडीज. ठीक है. तो व्हेन वी वर डूइंग रेजिडेंसी, होता क्या था कि अगर बच्चा है ना, तो वो ट्रायज में ओपीडी से पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ही आ जाता था. अब आइडियली अगर थ्रोट में कहीं पे या नोज में कहीं पे, तो फिर हम लोग कोशिश करते थे, नहीं होता था तो वी यूज्ड टू सेंड टू ईएनटी.
तो ये फॉरेन बॉडी का है और टॉडलर्स का रिलेशन है ना, ये बहुत ही कॉमन है। इन योर एक्सपीरियंस किस तरह की फॉरेन बॉडीज बच्चों ने अटकाई हैं अपने नाक में, अपने गले में, आई डोंट नो अपने कान में भी अगर करते हैं तो। ऑल्सो आई मीन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव आपने किस तरह के केसेस देखे हैं, एंड देन लेट्स फॉलो फ्रॉम देयर। So foreign bodies are very very common in the OPD emergency everywhere. Adults भी, सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चे most commonly हाँ, but nose and ear being very very common places. Usually होता है कि पेरेंट्स स्कूल से बच्चा ले आए कि उसने कुछ डाल लिया, और यूजली वो रबड़ होता है, पेंसिल के पीछे का रबड़ या दूसरा रबड़ या कोई क्रेयॉन। ओके। कई बार तो मैंने दो दो पीसेस ऑफ रबड़ निकाले हैं कि एक निकाला उसके पीछे एक और था। ओके। एंड सो लॉट ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो गो इन द ईयर। ओके। बहुत बार होता है मच्छर चला गया, एंट्स चला गया, एक बार तो बहुत बड़ा कॉकरोच भी निकाला है। ओह माय गॉड। एंड सो हाँ, वेरिड दिस थिंग, कॉर्न भी आया है, थर्मोकॉल वेरी कॉमनली, माइट्स, छोटे माइट्स भी आ जाते हैं कान में, लॉट ऑफ इंसेक्ट्स दैट हैव टेकन आउट, लॉट ऑफ मैगेट्स ऑल्सो, एडल्ट्स में नॉट फॉर किड्स, बट एडल्ट्स कम विद मैगेट्स ओके। and quite difficult to Yeah. take out all Yes. of them because वो तो they bury under skin. Um, yeah, and तो- foreign bodies, so even if कभी भी, एक तो हम्म। छोटे टॉयज बच्चों को नहीं देने चाहिए, स्मॉल पीसेस होता भी है तो ड्रॉप्स डाल लो पहले ही, बी इट ईयर ड्रॉप्स या नोज ड्रॉप्स, बिकॉज उससे थोड़ा सा ना लुब्रिकेशन हो जाता है, एंड देन इट्स इजियर Easier to टू टेक आउट, या बट इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट फिर भी अगर हम जस्ट सो दैट यू नो एज अ यूजर मुझे पता हो या एज अ पेरेंट मुझे पता हो कि ये चीज़ें ना ज़्यादा प्रोन है, सो लाइक यू सेड रबर, हमारे मतलब मैंने अपने क्लिनिक में बहुत बारी देखा था, वो जो लेगो ब्लॉक्स या कोई से भी ब्लॉक सेट्स होते हैं, स्मॉलर सेट्स, वो एक था, एक केस पर्टिकुलरली मुझे याद है, वो जो कार होते टॉय कार, उसके उसके चारों व्हील्स दो कान से निकले थे, दो नाक से निकले थे, ओह वाओ, एंड दिस किड एंड ही वाज जस्ट एबल टू ब्रीथ, वो एक दिन भी हो चुका था, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट डे स्टार्ट पेनिंग एंड ही स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ पेनिंग, एंड एक ही गाड़ी थी उस बच्चे के पास जिससे वो खेलता था, उसके चारों टायर गायब थे, तो मम्मी ने जब पूछा तो उसने बताया कि मैंने अंदर डाले हुए। So they brought to the clinic, and then obviously it required a lot of ENT work also there, and we were able to but a lot of coins, coin coming to yes, this topic, coins is very common, coins बच्चे usually खा लेते खा लेते हैं। तो वो that becomes a danger because आपका एयरवे में चला गया, फूड ट्रैक में चला गया, सो कॉइन्स वेरी इंपॉर्टेंटली छोटे बच्चों से दूर रखने चाहिए। अगर कोई अब बच्चा खा ले coin, हम्म, okay, just for the just for understanding, अगर किसी बच्चे को एक हिस्ट्री है कि उसने फॉरेन बॉडी इंजेस्ट कर ली है, 3 पार्ट्स में करते हैं, इंजेस्ट कर लिया, मुंह से खा लिया, क्या करना चाहिए पेरेंट को? आई थिंक फर्स्ट एक्सरे होगा हाँ, टू फाइंड आउट वेयर द नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब था कि जब वो घर पे हैं, क्या पेरेंट कैन बी वॉचफुल अबाउट दिस? Yeah, so चलो ठीक है, first, ऐसे रखते हैं। नहीं, I think if I was me, I would probably give him a banana and then tell him कि तुम चलो पहले इमरजेंसी और एक्सरे करवा लो पहले, ठीक है, टू एक्सरेज टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर है, इट मोस्टली वुड बी हार्मलेस, बट ऑल्सो एक कॉन्फर्मेशन हो जाता है टू द लेवल इफ इट्स इंजेस्टेड प्रॉपरली एंड it can be pushed down with maybe rice or banana or something, great, go for it, but precaution is always better. सो एक्चुअली फ्रॉम दिस ना मैं यही बोलना चाहता था कि इन एनी केस ऑफ फॉरेन बॉडी डू नॉट अटेम्प्ट टू टेक इट आउट योरसेल्फ, ओनली व्हेन इट्स क्लियरली विजिबल, आपको दिख रहा हो, आई थिंक यही बताते थे, क्लियरली विजिबल और आपको पता है कि आप अपने हाथ से निकाल सकते हो, Absolutely. देन ओनली। अगर पार्शियली भी विजिबल है मत करना, वो पीछे चला जाता है मोस्टली, एंड या So a lot of And, chalk. Chalk is also a very big hazard. And batteries. So the yeah, those smaller coin batteries, batteries, the lithium batteries. एक बार हमने नोज से निकाला भी था, बड़ा बच्चा था, but it leads to a lot of damage because वो लीक हो जाता है जब fluid, it leads to a lot of damage, lot of acidic केमिकल बर्न हो जाता है। chemical burn हो जाता है. So batteries should definitely be kept out of children's hands. Yes. Batteries in general, पता है मतलब this is actually a very good point that you've pointed out. Not only even those smaller ones, even the bigger ones, क्योंकि वो भी लीक करती हैं। Absolutely. पुरानी बैटरीज है आपके घर में अगर लिथियम वगैरह की, प्लीज वो डिस्कार्ड कर दो अगर लीक हो चुकी है, उस चीज को डिस्कार्ड कर दो अगर वो लीक हो चुकी है, इट कैन बी रियली हार्मफुल, लिथियम इज वेरी हार्मफुल इन दैट सेंस।
Yeah. Right. You know, recently, Ashima, I met a cousin of mine. उसके ना बेबी हुआ था and बहुत ही क्यूट सा बेबी था. So she asked me कि ये जब सोता है ना तो this one snores just like his father. Hmm. So I was like, okay. And she asked me a very genuine question. मेरे माइंड में भी आया था जब when I became a father. ये जो snoring है बच्चों की, is it cute or is it something that they should be worried about and should? So स्नोरिंग यहाँ पर वरीसम तो है, बट नॉट जस्ट ऑफ द चाइल्ड, पापा की भी. हाँ, तो मैं इस पे भी आने वाला हूँ पापा वाले पे. All snoring has to be treated. Okay. So coming back to the child, a child snoring is definitely not normal. There has to be some reason behind it. Snoring क्यों होती है? We breathe through. There are two outlets. हमारा एक तो two inlets. One is your nose and one is your mouth. अगर दोनों में से कुछ भी blocked है तो you will snore. Okay. In children, mostly it's nose blockage that leads to snoring or that sound that you hear Yeah. at night or when they're napping. Any episode of cold will obviously have snoring, which is normal. Yeah, right. वो जब कोल्ड ठीक हो जाएगा तो स्नोरिंग भी ठीक हो जाएगा एंड देन यू आर बैक टू नॉर्मल रूटीन. मगर अगर कोल्ड के बाद भी स्नोरिंग परसिस्ट करती है देन इट हैज टू बी इवैल्यूएटेड, इट हैज टू बी चेक्ड एज टू व्हाई इट्स हैपनिंग. Okay. या अगर बच्चे को बार बार कोल्ड हो रहा है एंड वो ठीक नहीं हो रहा है, लंबा चल रहा है, हफ्ते 10 दिन में नहीं ठीक हुआ, एक महीना कोल्ड चल रहा है, देन इट हैज टू बी चेक्ड Okay. कि क्यों हो रहा है. सो अगेन आई थिंक मोस्ट कॉमनली जो सबके दिमाग में ये रहता है कि बच्चों को एडेनॉइड्स ना हो, कि इतना हो रहा है उसको स्नोरिंग. सो येस, डेफिनेटली एडेनॉइड्स इज वेरी कॉमन. अगेन डिपेंड्स कि एडेनॉइड्स कितने हैं. द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन कि एडेनॉइड्स कितने हैं और कितना हार्म कर रहे हैं. बिकॉज एडेनॉइड एक नॉर्मल बॉडी का टिश्यू है जो रिस्पॉन्ड करता है टू वायरल इन्फेक्शंस. उसका Right. काम है टू फाइट अगेंस्ट all in and every infection that happens to your body. मैंने adenoid और tonsils को I want to cover it extensively. So I got it. Adenoids की वजह से snoring वाला एंगल आ सकता है. और क्या कॉजेज होते हैं बच्चों में? So like coming to the snoring why you asked ना, कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं कि उन्होंने नाक में कुछ डाला था अच्छा, ओके. और वो डाल के भूल जाते हैं. एंड इफ द पेरेंट्स आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन तो वो एक साथ से एक तरफ से ना नाक बह जाती है. ओह यस. कांस्टेंट वन साइड डिस्चार्ज रहता है, होता है बहुत बार. और बहुत महीनों तक है ना राइट. होता है बच्चा आएगा कि एक ही तरफ से नाक बह रहा है उसका कंटिन्यूसली, सांस नहीं आ रहा है एंड कभी उसने नाक में कुछ डाला होगा, वहां वो जम गया है. सो वी कॉल इट अ राइनोलिथ. ओके. जरूरी नहीं है हर बार एक स्टोन बन जाए, बट वो फॉरेन बॉडी पड़ा भी ना वो कॉजेज हार्ड हो जाता है, एक रिएक्शन कॉज करता है बॉडी को. और अगर वो प्रोवाइडेड इट्स अ नॉन ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी, कुछ खाना हो या दाल हो या कॉर्न हो या कुछ हो तो वो तो पक्का वहाँ डिसॉल्व करके एक इन्फेक्शन करेगा. अगर थर्मोकॉल का पीस है या आपने कहा था कि गाड़ी का पहिया है, प्लास्टिक पीस है, तो वो पड़ा रहेगा वहां पे और वहां पे वो हार्ड होता रहेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा और बच्चे का नाक ही बहता रहता है एक तरफ से. That's another symptom of this. यस, इट्स अ बिग सिम्पटम ऑफ स्नोरिंग आल्सो. रीजन है कि ये बनता है, सो थोड़ा ध्यान देना पड़ता ये एक लोग बोलते हैं कि डीएनएस की वजह से भी काफी होता है. है. यस, बट नॉट इन चिल्ड्रन. नॉट इन चिल्ड्रन. ओके. बिलो 18 तो उनका भी फेशियल स्ट्रक्चर पूरा बना ही नहीं है, नहीं. तो वो लेवल आप नहीं कर सकते. करते हैं लोग पोस्ट 12 भी, इफ इट्स अ वेरी ग्रॉस डीएनएस है, बहुत ही टेढ़ा है, पूरा सेप्टल्स पर बना हुआ है, पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग का हिस्ट्री है, तो पोस्ट 12 इयर्स कई बार सर्जरी भी एडवाइस किया जाता है. बेसिकली डीएनएस फॉर पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इज द जो आपका बी का सेप्टम है वो थोड़ा टेढ़ा होता है. तो डीएनएस ना 70% मिलता है. पॉपुलेशन का होता ही है, बट द पॉइंट इज कि वो उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है. राइट. अगर दिक्कत हो रही है तो हमें ट्रीट करना है, नहीं Otherwise, वी हैव टू जस्ट लीव इट. Right. You were talking about adenoids. I want to talk about tonsils and adenoids together. तो ना हमारे सिनेरियो में ये होता है और बहुत कॉमन डायलॉग है, मेरे बच्चे को टॉन्सिल्स हो गए हैं. एक तो इसको कैसे हम मतलब टॉन्सिल सबके होते हैं, ठीक है, और अगर नहीं है तो दैट्स एबनॉर्मल. तो इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन दिस, मेरे बच्चे को टॉन्सिल्स हो गए हैं, हाउ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एंड देन आई रियली वांट टू नो अबाउट एडेनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स एज सच एज सर. सो टॉन्सिल्स लाइक यू सेड सबके होते हैं, एंड टॉन्सिल एंड एडेनॉइड दोनों हमारे बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंटली इन चिल्ड्रन.
बड़ों में तो नहीं, इतना उनका कोई रोल नहीं है। बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कभी भी वायरल हो, कुछ इन्फेक्शन हो, दे हैव टू फाइट दैट इन्फेक्शन। तो वायरल के टाइम पे तो वो बड़े होएंगे ही होएंगे, बट वंस द वायरल सबसाइड्स, द साइज ऑफ द टॉन्सिल्स एंड द एडेनॉइड्स आल्सो गोज डाउन, एंड तो सिम्टम्स भी कम हो जाता है बच्चे का। एंड सो आई थिंक व्हाट पेरेंट्स वांट टू कन्वे व्हेन दे से कि टॉन्सिल्स हो गए हैं, कि गले में दर्द हो रहा है या टॉन्सिल में इन्फेक्शन हो गया है, या उसकी वजह से उसको खाना नहीं खा पा रहा है, या उसकी वजह से कोई दिक्कत है, आई थिंक दैट्स व्हाट दे मीन Yes, yes, absolutely. व्हेन दे से दैट स्टेटमेंट। बट हाँ, टॉन्सिल होना इज प्रीटी मच सभी के होते हैं, सभी के होते उसमें हैं, इन्फेक्शन भी कई बार हो जाता है। राइट? मगर अगर वो इन्फेक्शन 6 बार से कम हो रहा है साल में, तो हम उसके लिए कुछ एक्टिवली नहीं भी करते। ओके, बट नॉर्मली कभी-कभी पेरेंट्स को ये एडवाइस करा जाता है कि आप सर्जिकली इनको रिमूव करवा लो। व्हाट इज दैट सिचुएशन जब हमें ये एडवाइस करना पड़ता है पेरेंट्स सो को? टॉन्सिल्स एंड एडिनोइड्स कमिंग टू बोथ, अगर टॉन्सिल बहुत बार इन्फेक्ट हो रहा है साल में, 6 बार से ज़्यादा, हर बार बच्चे को एंटीबायोटिक देना पड़ रहा है, आप सोचो हर दूसरे महीने या हर महीने बच्चे को एंटीबायोटिक जा रहा है, उसका ग्रोथ स्टंटेड हो जाएगा। देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स दैट कैन हैपन, एंड इफ इट इज कॉजिंग मोर हार्म देन गुड टू द चाइल्ड, वी एडवाइस कि आप निकलवा लो। ओके, एंड एडिनोइड, कमिंग बैक टू एडिनोइड अगेन, अगर एडिनोइड इतना सिग्निफिकेंटली ब्रीदिंग इशू कर रहा है कि बच्चा, अच्छा, ये एडिनोइड और टॉन्सिल्स कहाँ हैं मतलब हमारे? सो टॉन्सिल्स तो हमारे गले में होते हैं, सब लोग बोलते हैं यहाँ है, बट यहाँ टॉन्सिल नहीं होता है, यहाँ पे उसका लिम्फ नोड होता है। टॉन्सिल अंदर होते हैं हमारे वो जो दिखता है आप में, अगर ऐसा मुंह खोलेंगे तो तो जीभ right के side। दोनों साइड पे, पीछे की तरफ, दांत के पीछे। एंड एडिनोइड टॉन्सिल के जैसा ही टिश्यू है, लेकिन वो आपके नोज के एकदम पीछे रहता है, तो दिखता नहीं है ऐसा। वो हमें दिखता नहीं है, वो हम सिर्फ एक्सरे पे ही देख सकते हैं, ओके, और एन एंडोस्कोपी। राइट। तो अगेन डिपेंड्स कि उसका साइज कितना है, टॉन्सिल का साइज कितना है, एडिनोइड का साइज कितना है, आपको दिक्कत कितनी कर रहा है, नोज ब्लॉक कर रहा है, स्नोरिंग कर रहा है, या बिल्कुल नहीं कर रहा है। सो अगर बहुत छोटा होता है तो समटाइम्स इवन मेडिकल मैनेजमेंट इज इनफ फॉर एडिनोइड्स। ओके, लेकिन अगर बहुत बड़ा है, बच्चे को स्नोर हो रहा है, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है, नॉर्मली भी माउथ ब्रीदिंग है, एंड एडिनोइड्स की वजह से अगर बोन स्ट्रक्चर फेस का चेंज हो रहा है, डेंटल केरीज हो रही है, दांत का शेप चेंज हो रहा है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली माउथ ब्रीदिंग से भी बच्चे को बैड ब्रेथ रहेगा, बच्चे के दांतों की शेप चेंज हो जाएगी, डेंटल केरीज ज्यादा हो जाएंगी। जब इस स्टेज पे बात आ रही है कि और चीजें अफेक्ट हो रही हैं, देन डेफिनेटली इट इज बेटर टू ऑपरेट तो दैन लीव इट इन। ये जितने भी आपने डिस्क्राइब करे इनको एडिनोइड फेसेस भी बोलते हैं ना? इनको एडेनोइड फेसिस तो कहते हैं। एक्चुअली हमारा एक, आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कि देयर वाज अ स्क्रीनिंग दैट हैपेंड इन विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र टू पिक अप द एडेनोइड फेसेस। पता नहीं था कि क्या होता है, देखा कि बहुत सारे बच्चों के एक ही जैसे फेशियल स्ट्रक्चर हो रहे हैं, लंबे elongated फेसेस हैं, वो है, तब रेट्रोस्पेक्टिवली पता चला कि नहीं माउथ ब्रीदर्स हैं, एंड दिस वाज, यू वोंट बिलीव इट, स्टडी ऐसे नहीं थी, ये प्रोजेक्टेड ऐसी थी, जो विलेज में जो टीचर्स थे जो पढ़ाते थे, दे स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि कुछ कुछ बच्चों के अच्छा। ऐसे हैं, देन दे जॉइन द डॉट्स कि अरे ये सारे बच्चे एडेनोइड फेसेस हैं, एंड देन द ट्रीटमेंट फॉलोड। सो इफ यू कैन जस्ट टेल एग्जैक्टली एडेनोइड फेसेस क्या, किस तरह का फेस होता है, और how how a parent can be vigilant about these things, like अगर माउथ ब्रीदर है तो क्या हर माउथ ब्रीदिंग गलत है? यस, एब्सोल्युटली, अनलेस एंड अनटिल माउथ ब्रीदिंग कोल्ड के दौरान हो रही है। Okay, ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ कोल्ड या कोल्ड के दौरान माउथ ब्रीदिंग नॉर्मल है। राइट, अगर उसके बच्चे को कोल्ड नहीं है और वो फिर भी कंटिन्यूअसली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, देन इट इज डेफिनेटली एबनॉर्मल एंड एंड इट शुड बी इवैल्यूएटेड, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज है जो उसको इतना तंग कर रही है। और बच्चों में डीएनएस, 3-4 साल के बच्चों में डीएनएस नहीं होता है इतना, 3-4 साल के बच्चों में एडेनोइड्स होते हैं। ओके, ओके, तो सबसे पहले डाउट हमारा वही जाता है। एडेनोइड फेस दिखता कैसा है, इफ यू कैन जस्ट? सो लाइक बहुत टिपिकली कहा जाता है, नोज पतली रहेगी, मुंह खुला रहेगा, आगे के 2 दांत बाहर आए हुए होते हैं, थोड़ा हाई आर्च्ड पैलेट होता है, बट दोज आर इनसाइड द माउथ। राइट, पेरेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि दांत कैसे हैं और माउथ ब्रीदिंग है या नहीं, अच्छा, ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ओके, ओके, अगर बच्चा मुंह बंद करके, अच्छा कई लोगों को ना एडिनोइड सेटल भी हो जाते हैं,
with age, but they are still mouth breathers. राइट, हाँ They- आदत पड़ चुकी है उनको. They're habitual mouth breathers. So you tell the child that आप मुंह बंद करके सांस लो, and if you see that the child is able to breathe with the mouth closed, उसको breathlessness नहीं हो रहा, हाफ नहीं रहा है, आराम से सांस ले रहा है, probably it's a habit. Okay. You know that हाँ, also happens. तो अगर वो ले पा रहा है great, then you tell him कि आप मुंह बंद करके सांस लो. मगर अगर मुंह बंद करते ही उसकी he has to suddenly open his mouth and gasp, that means उसको nose block है. कुछ तो है ही अंदर block. Yes. You know, recently I heard the word um, ear candling, right? Or so what is it? Ear because अभी actually किसी ने मुझे literally ये message डाला था कि Dr. Gaurav, thinking of getting a ear candling done, is it just a scam? This was the question. I said कि मैं बताऊंगा एक भाई किसी एनडी से पूछ के. So this is a double question for you. How sweet of you to think of me. No, but ear candling, आजकल ear cameras भी हैं Amazon पे. Okay. Lot of self cleaning tools के ads आते रहते हैं. ये वायर है, ये बड की तरह नहीं है, ये करेगा वो करेगा. Please avoid using anything of that sort. क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है कि खुद ही का मैल निकाल ले हम, हमें कहीं जाना ना पड़े, या वो लोकल वाला जो वो साफ करने वाला आता है पहले वो करता था तो वो कर जाए. बट नॉट एट ऑल सेफ. Okay. वेरी वेरी अनसेफ. ईयर कैंडलिंग में आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको होता क्या है burn हो candling? सकता है. सो ईयर कैंडलिंग में ना एक कैंडल टाइप का आता है जो वो यहाँ लगा देते हैं, उसके बर्न से अपेरेंटली उसके हीट से वो वैक्स मेल्ट होके बाहर आता है. I have never seen it. I've never done it. I've never tried it. It says because this is what I've read and seen videos of. Looks very unsafe, very unprofessional. क्या होगा हम we can't control. आपको वो melting wax से burn हो सकता है. There are so many things that can go wrong. आपको you can catch fire on your hair singed हो जाएगा. कुछ भी हो सकता है. You can get thermal damage inside. Your skin is so sensitive inside. तो it's a Anything. big no. It's a Absolute. absolute no. Absolute no. To all the cameras, to all the earbuds, to all the candles, everything is a no. सुन रहे हो ना? It is a so but see a lot of people also have a problem कि उनको बहुत itch होता है कान में. वो रोक नहीं पाते हैं. सामने पिन पड़ा है, पेंसिल पड़ा है, पेन पड़ा है, कुछ भी वो कान की चाबी, गाड़ी की चाबी भी कान में चली जाएगी. वो आदत है itch. Yes. But the problem is not. मेरे को भी थी पहले ये आदत. हाँ, ये आदत है. दिस इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन, इट्स एन आदत. Yeah. वो अच्छा लगता है मैम जब इचिंग होती है, बट ये बैड है ना, ये चीजें कुछ oddly satisfying चीजें हैं ये. बट वो क्यों है? सो मोस्टली ऑल ऑफ दोज पेशेंट्स हैव ड्राई स्किन इन जनरल. Okay. योर स्किन इज ड्राई. And that's why योर स्किन भी ड्राई है. आपके बॉडी में इच हो रहा है तो आप तो क्रीम लगाओगे ना, आप इच थोड़ी करते तो रहोगे. नॉर्मली इन केस में क्या है कैनाल में वैसलीन या can- कुछ लगा लो. सो यू कैन पुट ऑयल, ईदर अ फेस मॉइस्चराइजर और कोकोनट ऑयल. इनफैक्ट मेरा ये क्वेश्चन भी है एक कि लोग करते हैं, पहले जमाने से ऐसा होता जा रहा है कि ऑयल बॉईल करके तेल वेल नहीं डालना है, वो सरसों का तेल नहीं डालना है प्लीज. बट ऑयल ड्रॉप्स भी नहीं, आई वुड से ऑयल एप्लीकेशन आपने बस जितना फिंगर टिप जा रहा है जस्ट दैट मच, उसके बियॉन्ड आपका स्किन ही नहीं है. सो इट डजंट नीड ऑयलिंग. जितना स्किन है स्किन पे आप ऑयल करेंगे विद इन 1 वीक यू विल स्टॉप इचिंग योर ईयर्स. You will not feel the need to itch. No, never put your pencils and pens and Absolutely not. Imagine how unsafe कि आपका पर्दा ही फट जाएगा. वही ना. और पता है बड़ा डेलिकेट बैलेंस होता है कि बस वहाँ एक पॉइंट होता है उससे वापस लेकर आना होता है. Exactly. So everyone's tried this ear itching. Okay, so ear is sorted. Let's come to the nose again. On nose में ना there's just one question specifically I have is nasal spray. और nasal spray को हमें यूज कैसे करना होता है मेनली वो. सो nasal sprays are good. ठीक है, मतलब मैं अपना एक थोड़ा सा 2 cents दे रहा हूँ इस पे. When your child is really small, like till 2-3 years of age, normal saline nasal spray is a very very good option, especially when their child is having some symptoms of flu. ठीक है, बट एप्लीकेशन आप बताओ आप. So first to clarify, बहुत सारे nasal sprays आते हैं. Like you mentioned one saline spray. Yeah.
और कौन से? और ऐसे ऑक्सीमेटाजोलिन वगैरह वाले आते हैं वो जो ज्यादा पावरफुली निकलते हैं। ओके, सो नेजल स्प्रेज आर गुड। हम्म 4 तरीके के मैं बताती हूँ। फर्स्ट है सलाइन स्प्रे, तो सबसे सेफ है हमारा। ओह! सॉरी, क्लास लो रही है क्या आज? सो सलाइन स्प्रे तो बहुत अच्छा है, जितना मर्ज़ी यूज़ करो, दिन में 10 बार यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एडल्ट्स के लिए आप बोल रहे हो ना? आई डोंट नो, इवन फॉर चिल्ड्रन, व्हाई नॉट? I mean, इतना छोटे से like in my case, I will not recommend this for like a less than 1 year old kid कि हम इतनी बारी करें, but नो, at अ least ड्रॉप, अ सलाइन ड्रॉप्स हाँ, भी बट यूज़। मैं काफी लिबरली भी यूज कर लेता हूँ। मैं 4-5 बारी आप डाल लो सिंगल सिंगल ड्रॉप, उससे ज़्यादा एक्चुअली में एक्चुअलिटी में ये डाल भी नहीं सकते, नहीं डालना नॉट चाहिए। पॉसिबल। And also, still, in spite of all of this, any of these advices, you should only do it after Yeah. consulting your doctor. Yeah, Yeah. but yeah, go ahead. So 4 types of sprays are there. हाँ, फर्स्ट बीइंग सलाइन, सलाइन वर्क्स वेरी वेल। इट्स आल्सो बेस्ड ऑन दिस ट्रेडिशनल, हमारा जो आयुर्वेदा में कॉन्सेप्ट है ऑफ जल नीति। Mm-hmm. जल नीति वर्क्स वेरी वेल इन साइनोसाइटिस पेशेंट्स। आई लिटरली एडवाइज ऑल माय पेशेंट्स ऑन अ डेली बेसिस कि आप जल नीति करो। इफ दे कैन नॉट डू दैट कम्बरसम किया पॉट लेना है, जल नीति का बॉटल भी आता है। फिर भी कई लोगों को लगता है कि बॉटल में पैकेट डालो, पानी भरो, इट्स कम्बरसम। तो बने बनाए सलाइन स्प्रेज आते हैं, आप यू कैन पुट इट इन योर बैग, टेक इट विद यू, यूज इट एनीवेयर। Pollution के लिए it is great because when it's really polluted, come spray your nose, clean out all the pollutants and you're good to go. Because nose का काम is a filter. जैसे AC में filter लगता है, हमारे nose का काम हमारी body का filter है, to filter the pollutants. अगर आप वो saline spray से physically वो pollutants wash off कर देंगे, तो it is a great load reduction on your body. आपके body को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। Okay. सो इवन इन जापान इट्स अ ट्रेडिशन कि जब वो बाहर से आते हैं ना, चाहे वो बच्चा क्यों ना हो, उनका नोज स्प्रे और माउथ रिंस होता है। इट्स अ ट्रेडिशन कि आप वाह। बाहर गए, आप घर आए, आपने माउथ रिंस किया और आपने नोज वॉश किया। उससे उनके वायरल इन्फेक्शंस के इंसिडेंस इज ऑलमोस्ट हाफ एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड। Beautiful. Wow. सो इट्स अ ग्रेट स्टडी टू लुक एट एंड अ ग्रेट प्रैक्टिस इफ अडॉप्टेड। Yeah. And it's very easy, है ना? वेरी इजी, इट्स अ क्विक 2 मिनट प्रोसेस। आपने घर आए, आपने अपना सॉल्ट वाटर से गार्गल किया, सलाइन स्प्रे किया एंड यू आर गुड टू गो। इट डजंट टेक लॉन्गर देन 30 seconds. बस ना? And acha, so first being saline sprays works for kids in cold and all, and works for adult sinusitis है, normal cold है, it does a good job. Second is the oxymetazoline or xylometazoline decongestant nasal sprays, more commonly brand names जो already पता है सबको। रेडियो पे जोर जोर से ऐड आता है, which is great. I hope I don't get a notice. Please That's why edit. we are- that's why we are not naming the brand. Please edit. Yeah. Okay. So, but now the problem with those sprays is कि जब cold है तब आपने 1 हफ्ता यूज किया, you are very happy with it. But some patients are dependent on it for life. वो 10 साल से यूज करते जाते हैं। बट द प्रॉब्लम कम्स कि यही जो स्प्रे है वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंसी कर देता है। इट कॉजेज द सेम डिजीज दैट इज मेंट टू ट्रीट। अरे बाप उसको डिकंजेस्ट करना है नोज का, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो रिबाउंड Stuffiness कंजेशन, स्टफीनेस कर देता है, और फिर उसका इलाज तो है तो वही, तो इसलिए आप वापस यूज करोगे। इसलिए आप वापस यूज करोगे और आपकी वो आदत बन जाएगी, आप उसके बिना सो नहीं पाओगे। ओके। इट बिकम्स अ साइकिल जो आप कभी तोड़ नहीं पाते हो, और लोग सालों साल यूज करते हैं। इट्स डेफिनेटली नॉट गुड एंड साइड इफेक्ट, बीपी भी बढ़ जाता है। इट इज नोन टू कॉज हाइपरटेंशन। अच्छा, कमिंग टू थर्ड, नहीं बट अगर किसी कोई एक्यूटली यूज कर रहा है जब वो which is fine. Using it for 5 to 7 days is absolutely fine. Okay. You must use it to open up your stuffiness of the nose at that time, so you're able during the to function and breathe. Yes, but then after that episode, you must stop. बिल्कुल Or however long, if your doctor is prescribing it to you for however long, you must follow the Those doctor's orders, advice. yeah. Yes, not keep taking it beyond that prescribed amount of Yeah. time. what's the third one? So then we have steroid nasal sprays. Okay. Steroid, the scary Yeah, वाला steroid. yeah. बट नेजल स्प्रे के फॉर्म में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो सिर्फ नाक में रहता है और आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं कर रहा। तो मैं पेशेंट को समझा के देती हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप 10 साल यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. सो स्टेरॉइड नेजल स्प्रेज कैन बी यूज्ड फॉर
Again, तो क्या किन लोगों को यूज करना तो अगेन सिर्फ डॉक्टर की एडवाइस पर ले, प्लीज अकेले अपने आप जाके फार्मेसी से ना परचेज करें. यूजुअली फॉर पेशेंट्स हु आर वेरी एलर्जिक ओके इट वर्क्स वेरी वेल. ओके क्योंकि स्टेरॉइड का काम ही हमारा मॉडिफिकेशन करना होता है, तो वो एलर्जी मॉडिफाई करके उसको सप्रेस करता है. इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, बट इट इज अ गुड सॉल्यूशन टू कंट्रोल द सिम्टम्स. ओके जैसे एस्थमा होता है तो स्टेरॉइड इनहेलर आता है, राइट ऐसे ही एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है उसके लिए स्टेरॉइड नेजल स्प्रे आता है. बिल्कुल ओके एंड इट डज अ गुड जॉब, बट दैट इज नॉट द एंड ट्रीटमेंट फॉर एलर्जी. राइट एलर्जी हैज मोर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, स्पेशली आजकल के 2026 के ज़माने में. तो मतलब अगर आप सिर्फ यही यूज़ कर रहे हो तो outdated यू आर आउटडेटेड. but I will come back to allergy also. I have written that. What's the fourth one? So the fourth one is very new. Now vitamin B12 अच्छा comes in the form of nasal sprays. oh okay So instead of getting B12 injections, आप B12 nasal spray करो. अच्छा Equally इंडिया में भी अवेलेबल है बिल्कुल अवेलेबल है, वेरी फ्रीली, इक्वली एफिकेशियस. 7 डोज इंजेक्शन लगता है, 7 डोज नेजल स्प्रे लगता है, दर्द नहीं होता. कल ही डॉक्टर के पास मेरी patient- सिस्टर का फोन आया था शी इज इन ऑस्ट्रेलिया उसका B12 कम आया था अराउंड 150 एंड हर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड her injections and instead she went to the pharmacy and bought high strength B12 tablets फिर अब मैं इंजेक्शन लगाऊंगा I'll give this advice to her yeah this was nice बिकॉज टैबलेट्स टेक आपको 1 महीना खानी पड़ेंगी टैबलेट्स टू रेज अप योर लेवल्स. नाउ द नेजल स्प्रे इज गोइंग टू वर्क इन 7 days, not 7 days, 7 doses yeah 7 doses with the gap with the gap. tried by the doctor Yeah. So, and now also insulin is available as a nasal. yeah that is the So that's a new addition. so basically I would say saline nasal spray and medicated nasal sprays Yeah. and medicated are different Lots of times. mostly please under advice only of your medical Absolutely. practitioner किसी भी तरीके का nasal spray लें and yeah so this was about the nasal sprays can you just tell like real quick कि किसी को cold है एक 5-6 साल या adult उसको कैसे लेना है nasal spray एग्जाम्पल इसी के ले लेते हैं मेडिकेटेड कोई सा भी nasal spray जो उसको प्रिस्क्राइब्ड है बट मोस्टली डॉक्टर्स डोंट टेल कि यार लेना कैसे है हाँ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इतना नहीं हो पाता एक्सप्लेन कर पाते और हैं, टाइम भी नहीं हो पाता टाइम नहीं हो बहुत पाता. एंड बट अगर गलत तरीके से लिया जाए ना तो बहुत पेशेंट कहते हैं मैम ये तो फर्क ही नहीं पड़ता. फर्क ही नहीं पड़ रहा मैंने कहा वो फर्क तो पड़ेगा, हमें लेना नहीं आता. सो मैंने एक रील डेडिकेटेड ऑन माय चैनल इज ओनली फॉर दिस, हाउ टू यूज नेजल स्प्रे. oh wow, we should actually tag that as well हाउ टू यूज स्प्रेज इज वन फुल रील की सिर्फ यही सीखो. okay सो बट फॉर ये जो कोल्ड एंड सलाइन वाला स्प्रेज है, यू कैन जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड स्प्रे. वो आप थोड़ा सा टिल्ट द स्प्रे टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ योर नोज, क्योंकि बीच में तो हड्डी होती है आपके, हड्डी पे कोई भी दवाई काम नहीं करेगी. दवाई को हमेशा आउटसाइड वाली वॉल पर काम करना है. तो आइडियली आपको राइट हैंड में स्प्रे पकड़ के नीचे देख के उसको एंगल करना है टुवर्ड्स योर लेफ्ट आई. सो राइट हैंड क्रॉस मिड लाइन लेफ्ट आई, स्प्रे एंड देन shift the Opposite. bottle, yeah, opposite hand, right hand, left nostril, pump, it will go on this side. Okay. Okay. So that is a direction that you take the spray in. Yeah, right. सीधा लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. ये तो आपने बताया जिसमें स्प्रे लगा हुआ है ना बट लॉट ऑफ टाइम देयर आर दीस nasal drops that come mainly saline तो उसको कैसे So for drops you put your head back, tilted on a pillow. बच्चा है तो उनको थोड़ा head tilt करके then you put drops. जैसे आप ईयर में डालते हो जो उस तरह हाँ, ग्रेविटेशनल इफेक्ट gravitational effect, absolutely. ठीक है बच्चों को कोल्ड हुआ या एडल्ट्स को भी एंड सडनली कोल्ड स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू दिस पेन ऑन फेस Hmm. उनको ना पेन होने लगता है फेस पे स्पेशली यहाँ पे थोड़ा टेंडर हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा टेंडर हो जाएगा ऐसा क्यों होता है So अगर आपका कोल्ड नहीं ठीक हो रहा है and it's progressing to facial pain, so that is definitely a cause of concern because that reflects कि आपका undergoing कहीं पे sinus inflammation हो रहा है. साइनस क्या होता So sinus हमारे skull में, हमारे face में empty spaces होते हैं to make your bones lighter है ओके and for air circulation. So अगर इन्फेक्शन नोज से साइनसिस में चला जाए तो फिर यहाँ पर चीक्स में दर्द, आईब्रोज के आसपास दर्द, आई में प्रेशर आना, दोज आर सिम्टम्स दैट यू आर डेवलपिंग साइनोसाइटिस, ओके एंड दैट देन वारंट्स लिटिल बिट मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट देन जस्ट कोल्ड का right ट्रीटमेंट. right that's definitely when you should consult a doctor या डेफिनेटली take a treatment डेफिनेटली, एंड नॉट जस्ट पॉप
medication, OTC को ना OTC medications, yeah. Perfect, perfect, perfect. Talking about nose and kids, another very important element is nosebleeds. मेरे को बचपन में बहुत बारी होता था, मैं खेलने जाता था, मेरी बैटिंग चल रही है या ब्लीडिंग ही होने लगी नोज से, बैटिंग भी चली गई, वापस भी आ गया घर. So why do that happen really? Why do nosebleeds happen in kids especially? And खेलते वक्त बहुत ज्यादा होता है mostly. I don't know. So again, nosebleeds are very very common, especially अभी आने वाले गर्मियों के महीनों में हर दूसरे बच्चे को हो जाती है. So depends on the age. अगर छोटा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, नोजब्लीड के साथ आ रहा है, यूजुअली कोल्ड हुआ होता है या उन्होंने अपना फिंगर नेल मारा होता है नोज पिकिंग की वजह से. नोज पिकिंग भी इसीलिए होती है कि नोज ब्लॉक है. सो देन वो इरिटेशन की वजह से नोज ब्लीड हैपन्स. अच्छा, बड़े बच्चों में जैसे आपने बोला कि बाहर खेल रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, वो बिकॉज इंडिया में एयर इतना हॉट हो जाता है, इट्स सो ड्राई कि हमारे जो नेजल म्यूकोसा है वो भी इतना ड्राई हो जाता है. एंड मेन यहाँ पे क्या है कि स्किन तो है नहीं नाक के अंदर, पतला खाल होता है, उसको म्यूकोसा कहते हैं. एंड वो अगर बहुत ड्राई हो जाता है, वहाँ पे ना ब्लड वेसल्स बहुत सुपरफिशियल हैं, बहुत ऊपर ऊपर ही हमारी सारी वहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स होते हैं. तो वो हल्के से भी ड्राइनेस से, बहुत ड्राई हुआ, वो हल्का सा वहाँ पे टेयर हो गया तो वो सडनली ब्लीड होने लग जाता है. सो ह्यूमिडिफायर का कॉन्सेप्ट अभी इंडिया में नहीं है, अभी स्टार्ट हो गया है, बट ह्यूमिडिफायर इस चीज़ को प्रिवेंट करता है. बहुत ड्राई एयर, जैसे लू चलती है एकदम, तो इट्स वेरी ड्राई एयर, इट हिट्स यू, उससे नोज ब्लीड होना बहुत कॉमन है. सेकेंडली, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बच्चों की नाक की बीच की हड्डी अगर टेढ़ी हो, कई बार बहुत टेढ़ी भी होती है ना, तो उसमें वो म्यूकोसा इतना फैला हुआ, उसका सरफेस एरिया इतना होता है कि उस पे जैसे ही हवा लगती है तो वहां से खून निकलने लग जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन कॉजेज ऑफ. बट आप जो ह्यूमिडिफायर बोल रहे हो, मैंने चलो घर में तो रख लिया, बट बच्चा तो बाहर बाहर खेलने जाएगा, तो क्या विल दिस आल्सो हेल्प किया, अगर घर में वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पे ह्यूमिडिफायर है, और जब वो बाहर खेलने जाता है, विल इट आल्सो प्रोटेक्ट देयर? हाईली अनलाइकली, बिकॉज ओके, आपका एयर क्वालिटी दो जगह अलग है. तो सारे बच्चों को क्यों नहीं होता? लाइक आई सेड, कमिंग बैक टू द डिविएटेड सेप्टम, जो बीच का हड्डी है, अगर जिसका नहीं है, आई मीन ग्रेट, बट जिनका है, दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग नोज ब्लीड्स. और ऐसा नहीं है कि बड़े बच्चे उंगली नहीं मारते, बड़े बच्चे भी करते हैं. मोस्ट कॉमन कॉज इज फिंगर ट्रॉमा. ओके, तो यूजुअली बिकॉज ऑफ दैट. you know when we talk about finger trauma, मुझे याद है back in those days when we were studying anatomically, there was an area in the nose called Little's area. करेक्ट. तो ये आउटर वाले वॉल पे होता है या मिडिल में होता है? वो मिडिल वॉल मिडिल पे है, सेप्टम पे है. तो दैट इज द मोस्ट प्रोन एरिया फॉर ब्लीड. ब्लीडिंग. ओके, यस. और जैसे ये बच्चों में हम टिपिकली ब्लीड वहीं से होता है, वहीं से ही होता है. बच्चों में भी मोस्टली, इन एडल्ट्स ऑल्सो वहीं से ब्लीड आता है, अनलेस इट इज अ डिफरेंट रीजन ऑफ ब्लीडिंग, तो फिर वो दूसरी जगह से होता है. बट मोस्ट कॉमनली जो एंटीरियर ब्लीड्स होते हैं वो लिटल्स एरिया से ही होते हैं. चलो मान लो ब्लीडिंग हो रही है बच्चे को, अब एज अ पेरेंट मैं क्या करूँ? हाउ डू आई स्टॉप द ब्लीडिंग? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन. फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड्स. फर्स्ट एड हमेशा, एक तो पीछे नहीं लेटना, ओके. आपने नोज नीचे देखना है ताकि जो भी ब्लीडिंग हो नीचे आए. ओह माय गॉड, लिटरली लोग ऐसा करा देते हैं. यस, क्योंकि पीछे जाने से ब्लीडिंग तो रुकेगा नहीं, बस वो पीछे गले में चला जाके पेट में चला जाएगा. राइट, ब्लीडिंग नहीं रुक रहा, ब्लीडिंग तो हो ही रहा है. राइट, आगे आने देना चाहिए. अंदर जाके पेट में तो फिर उल्टी भी होने का चांस रहता है, वो इरिटेट करता है स्टमक राइट, को. राइट. तो आपने आगे देखना है एंड पिंच योर नोज. दोनों हाथों से यू विल कंप्लीटली कोलैप्स, इस तरह से योर एंटायर नोज फॉर 2 मिनट्स. घड़ी से देख के पूरे 2 मिनट 3 मिनट आपने उसको पकड़ के रखना है. आप माउथ ब्रीथ करो उस टाइम पे और उसको पकड़ के रखो. आपका खून ऑटोमेटिकली क्लॉट हो जाता है, 2 से 3 मिनट में आपका खून क्लॉट हो जाता है. Okay. तो वो प्रेशर से भी वो आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा. ओके, एंड उसके बाद आप जो ये ऑक्सीमेटाजोलिन वाले ड्रॉप्स आते हैं, आप एसओएस में वो भी डाल सकते हैं, ठीक है. जब तक आप डॉक्टर के पास ना पहुंचे. राइट, राइट. एंड फिर आप फर्दर इलाज वहाँ पे चेक कर सकते हैं. कई बार तो मेरे पास एक बच्चा आया, बड़ा बच्चा था, ही वाज अबाउट 13 इयर्स ऑफ एज, बट उसको एक बार ब्लीड हुआ, फर्स्ट एड उसने किया, नहीं रुका, अगले दिन फिर ब्लीडिंग हुई. तो फिर इस केस में हम एक एंडोस्कोपी करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से आ रहा है. बहुत खून आता है तो फिर उस जगह को, इट्स कॉल्ड अ प्रोसीजर, इज कॉल्ड अ कॉटरी. तो फिर कॉटरी करके अच्छे से उसको ट्रीट करके बच्चे को घर भेजते हैं ताकि वो फिर से ना हो उसको, ओके, बिकॉज बार बार होना इज वेरी Of course, स्ट्रेसिंग of एंड आपका टाइम Yes, जाता है, right. रूटीन खराब होता है. यस. इट्स नॉट इजी. ऑल्सो a lot of time I've seen कि जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो लोग
टिश्यू या वो हाँ। इंसर्ट करते हैं. इज दैट ओके टू डू और इज इट नॉट ओके टू डू? सो दैट इज ऑल्सो ओके, बट आई वुड सजेस्ट पहले आप नोज पिंच करो. आप पिंच भी कर सकते हैं. उस टाइम पे ठंडे पानी से मुंह धोना. ठंडा पानी चीक पे या फोरहेड पे लगाने से भी ब्लीडिंग कम हो जाता है. Okay. सो यू कैन पुट आइस, जो अवेलेबल है, आइस अवेलेबल है, ठंडा पानी अवेलेबल है, उस टाइम पे मुंह धो ले, उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है. अगर इन सब चीज़ों से भी नहीं रुक रही है, स्टिल बहुत ब्लीड हो रहा है, देन मे बी स्टफिंग अ टिश्यू एट दैट टाइम हेल्प्स. बिकॉज पॉइंट इज कि आपको फिजिकली वो जगह को स्टॉप करना है. कहीं से भी खून निकले तो आप दबा दे, प्रेशर भी दे रहे हो वहाँ पे. आपको प्रेशर देना है. वो प्रेशर आपने पहले फिंगर से ट्राई किया, अगर उसे नहीं हुआ देन यू कैन यूज, एटलीस्ट जब तक आप हॉस्पिटल ना पहुंचे तब तक तो आप लगा ही सकते हैं. कॉटन लगा सकते हैं, टिश्यू लगा सकते हैं Yeah. टू कंट्रोल. इवन tampons आर नोन टू बी Yeah, stuffed in yeah, the nose yeah. I've seen that in a lot of movies. in a lot of movies. इंडिया में तो आई थिंक tampons are not that common, तो इसलिए शायद नहीं होता है, but it's a great absorbent. Yeah, exactly. And somehow it's kind of in a very handy shape that can be, It used. fits. You know, something. Now this question is very um is a modern age problem. My next question: earphones, है ना? Especially the newer generation. आप देखोगे उनको, whether they're traveling in the metro, whether they are just anywhere else, जहाँ पे वो अलाउड है या जहाँ पे वो अलाउड नहीं है, उसके अलावा हर जगह, so they always have earphone in their ear. A lot of studies have shown that there is partial or some level of hearing loss that's happening because of that. What is your take on that? और कितना recommended है? सबटाइटल्स पढ़ो, बहुत मजा आता है सबटाइटल्स पढ़ने में. सो अच्छा, ईयरफोन्स आर ऑल्सो मेजर रीजन ऑफ वैक्स. Okay. बिकॉज नॉर्मली आपका ईयर क्लीन कर लेता है या पुश आउट कर लेता है, लेकिन आपने उसको प्लग ही कर दिया तो वैक्स निकल नहीं पाता. तो बहुत पेशेंट्स भी आते हैं कि एक ही तरफ वैक्स है, दूसरी तरफ नहीं है कान में. दैट मीन्स वो वाला कान तो ऑटोमेटिकली साफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भर गया. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सारा टाइम ईयरफोन लगा के रखे हुए हो. तो एक तो वो रीजन हो गया हियरिंग लॉस का. सेकेंडली, ईयरफोन वॉल्यूम. सो एनी स्पीकर हो, चाहे एक्सटर्नल स्पीकर हो, चाहे ओवर द ईयर हेडफोन हो, चाहे इन द ईयर हेडफोन हो, उसका वॉल्यूम शुड नेवर बी मोर देन आपका 60% ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द डिवाइस. अच्छा. Okay. मोस्ट डिवाइसेस में एक अलर्ट भी आता है कि ये आप इसके ऊपर ना जाएं, इसके ऊपर ये हाई वॉल्यूम है. यू शुड लिसन टू दैट अलर्ट. स्टिक टू बिलो 60%. Yeah. बिकॉज एंड स्पेशली अगर आप मेट्रो में सुन रहे हो, मेट्रो का बैकग्राउंड नॉइज ही इतना है कि आपको सुनने के लिए आपका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. Right. आप जितने हाई वॉल्यूम पे जितने ज़्यादा टाइम तक सुनेंगे, इट लीड्स टू अ टेम्पररी थ्रेशोल्ड शिफ्ट, हम उसको कहते हैं. टेम्पररी हियरिंग लॉस होता है, एंड इफ अक्यूमुलेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो परमानेंट हियरिंग लॉस भी हो सकता है. Okay. सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो वॉल्यूम रिस्ट्रिक्शन 60%. 60%, दूसरा लिमिट योर टाइम. Time. सो 60-60 रूल बना लो. 60%, 60 मिनट्स. Okay. 60 मिनट्स के बाद आपने ब्रेक लेना है. Okay. Ideally should be lesser, but easier to remember is 60-60. 60 minutes के बाद you take a break. Take a break 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, or stick to subtitles. And then you can go back to listening. Okay. And best is कि आप अगर noise cancellation वाले यूज करें, because उसमें आपका जो total volume है थोड़ा आप कम यूज कर सकते हो. And over the ear headphones are safer than in ear headphones. Okay. And even better than that is an external speaker. Right. Even these days, earphones are coming which uses your bone conduction for that. Yeah. वो कहीं पे भी नहीं जा रहे. I recently was using this earphone which was like around my ear lobule, like this outer one. और बस उसी से सब कुछ आ रहा था, प्रोजेक्ट कर रहे थे. तो is that even better? Yes, In that that is sense. much safer. Much safer. But then again, Again, rule still applies. okay. Rule doesn't go away. But It's just a different form of Yeah. sound conduction. Yeah. But 60 minutes आपने मुझे बोला 60 minutes. But over the time, like पूरे दिन में कितना यूज कर सकते हैं? Is there any guidelines around that? Because मैंने देखा है मेरा मतलब a relative of mine, a very close relative of mine, वो सुबह जब से उठता है तब से रात तक उसके लगे ही रहते हैं. अच्छा. Yeah, I mean, and this is a very common scenario, by the way, these days for the kids. If they are traveling, it's there. If they're So couple of hours is okay, but I mean using it for more than 5-6 hours is definitely not recommended. And even on that topic, बच्चों के earphones आने लगे हैं.
For 5-year-old toddlers, Yeah. people are selling headphones and Yeah, very colorful and very colorful, but it's so harmful. yes. You Yes. should definitely, बच्चों को क्यों देना है? बच्चों को आप स्पीकर दो, बच्चों को इन ईयर हेडफोन्स क्यों देना है? Their ears are anyway so delicate, so sensitive, and ऊपर से इतना close sound exposure is just going to worsen the hearing. नहीं सोचा नहीं था ये, बट एट व्हाट एज डू यू रिकमेंड कि ऐसा कुछ है ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं है, जब तक अवॉइड कर सकते हो काइंड ऑफ? हाँ। या इजीली अबव प्यूबर्टी. अब सोशल मीडिया पे भी तो रिस्ट्रिक्शन आ गया है ना कि 12 साल से पहले नहीं देना चाहिए. बिल्कुल. सो व्हाई हेडफोन्स? Yeah, actually. रूम एंड अ स्पीकर. Yeah, I know. So, another important question, especially from healthy dads and healthy moms point of view. Uh, आपने भी देखा होगा रिसेंटली ना वर्टाइगो और डिसनेस के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं. एंड वी कैन टोटली गेट इट, लाइक देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर दिस. उसमें एक रीजन इनर ईयर होता है. तो कैसे पता चलता है कि इनर ईयर है इसका रीजन? सो अगेन क्या करना वर्टिगो डिजीनेस इज वेरी वेरी चाहिए? वास्ट. चक्कर आना है ना? मल्टीफैक्टोरियल. चक्कर आना, हाँ, चक्कर आना, गिर जाना, कमरा घूम रहा है, आप घूम रहे हो, चलने नहीं पा रहे हो, लग रहा है कि अभी गिर जाओगे. देर ऑल सिम्टम्स. बहुत सारे रीजंस होते हैं. हाँ, ईयर एक बहुत मेजर रीजन है. तो इसमें ना 2-3 स्पेशलिटीज का काम एक साथ होता है. एक है न्यूरोलॉजी, एक है ईएनटी, एक आपका है एन ऑर्थोपेडिशियन and also a psychologist. Okay. So there has to be ideally a team of all of these people who are evaluating you. अब चक्कर के बाद सबसे पहले सब लोग न्यूरो वालों के पास चले जाते हैं कि क्यों चक्कर आ रहे हैं. बट ये अब चक्कर का रीजन ना कैन बी एनीथिंग फ्रॉम सर्वाइकल टू स्लीपिंग रॉन्ग टू बीपी गिरना टू बीपी बढ़ना टू इनर ईयर प्रॉब्लम्स टू न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. सो बहुत सारे रीजंस होते हैं. हमारे पास ऑब्वियसली फिल्टर्ड ईयर के ही रीजंस आते हैं. और इनर ईयर क्योंकि हमारा संतुलन मेंटेन करता है, हमारे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है. तो इनर ईयर में इन्फेक्शन हो जाना या उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाने से वो चक्कर आते हैं. देन इट हैज टू बी इवैल्यूएटेड बाय द डॉक्टर एंड आइडियली बाय अ टीम ऑफ डॉक्टर्स टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है. Okay. ओनली वंस वी नो कि लाइक आई सेड कि कई बार सिर्फ सर्वाइकल की वजह से है, Mm-hmm. इजीली ट्रीटेबल. बट यू हैव टू फर्स्ट डायग्नोज कि वो सर्वाइकल की वजह से है. इनर ईयर में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है बीपीपीवी, Okay. जो हमारे इनर ईयर में बहुत छोटे छोटे से स्टोन्स होते हैं. उनको कान के कण कहते हैं या ओटोकोनिया कहते हैं. अगर वो अपनी जगह से हिल जाता है तो वो फिर एक कॉज ऑफ डिजीनेस बन जाता है. उस वजह से चक्कर आते हैं. तो इसको सही कैसे करते हैं? अगेन इसके बहुत सारे मैनूवर्स होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं. दैट इज अगेन कैन नॉट बी डन एट होम. यू हैव टू विजिट द डॉक्टर्स अंडर सुपरविजन. अ स्पेशलिस्ट कैन ओनली डू इट. इट कांट बी, शुडंट बी प्रैक्टिस्ड ऑल्सो एट होम. एंड उससे पहले, ट्रीटमेंट से पहले तो डायग्नोसिस बनाना है बहुत जरूरी है. बट अभी किसी को आ रहा है, मतलब उसको चक्कर आ रहे हैं, कुछ है, दवाई नहीं है, इज देयर एनी होम रेमेडी या कोई एब्सोल्युटली नॉट. नहीं? एब्सोल्युटली नॉट. बिकॉज बहुत पेशेंट आते हैं कि हमने ये दवाई खा के हम आ गए. अब उससे हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि वो दवाई से ना वो सिम्टम्स दब जाते हैं. तो हम वो कॉज पता ही नहीं कर पाते कि किस वजह से हो रहा है. हमें वो पता नहीं चलता. फिर हमें पेशेंट को बोलना पड़ता है आप 3 दिन दवाई मत खाओ और फिर आप आओ. ओके. सो आई ऑलवेज सजेस्ट, आपको अगर हो रहा है आप प्लीज हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवा लें. ईएनटी से मिले, न्यूरो से मिले, ऑर्थो से मिले. रीजन से तो मिल इन तीनों से तो मिलना ही मिलना है बिफोर टेकिंग एनी पिल फॉर इट. हाँ, आप घर में अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक कर लो ओके. कि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर कितना था. वो चीज़ आप घर पे चेक कर सकते हो. बड़ा है या कम है. कम है तो आपने ओआरएस पी लिया, नींबू पानी नमक डाल के पी लिया. ज़्यादा है तो आपको बीपी का टैबलेट चल रहा है तो आपने वो ले लेना है. लेकिन सेल्फ मेडिकेशन फॉर डिजीनेस बिल्कुल भी नहीं. ओके. वो आप ही को दिक्कत देगा, आप ही का डायग्नोसिस डिले करेगा एंड उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है. सो इट्स बेटर टू नॉट डू इट. यू नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वो छोटा क्यूट बच्चा जो स्नोरिंग कर रहा था, उसके पापा भी कर रहे थे, एंड यू सेड कि वो भी प्रॉब्लम. सो ये एडल्ट स्नोरिंग को हमें कैसे लेना चाहिए? सो ओके फाइन, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. एक एडल्ट है जो बहुत कॉमन सिनेरियो है, नॉट वेरी ओवरवेट, स्लाइटली ओवरवेट, बट हाँ रात को सोता है तो ही स्नोर्स. इसको 3 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूँ तो एक लाइफस्टाइल में मान लेते हैं, एक
कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कुछ है और एक एक्चुअल स्लीप एपनिया है, तो हाउ सेंट्रल। सेंट्रल है। तो अब आप बताओ कि एज अ मतलब आप इसको कैसे बताओगे कि यार क्या हो सकता है? सो देखो, स्लीप एपनिया बहुत ही अंडर डिस्कस्ड, अंडररेटेड टॉपिक है। बिकॉज सबको स्नोरिंग होती है, लोगों को लगता है नॉर्मल है, सब स्नोर करते हैं, कोई बात नहीं। जब तक वो इतना लाउड ना हो जाए कि पार्टनर की नींद डिस्टर्ब हो, तब वो रेडार में आता है कि अच्छा अब तुम डॉक्टर के पास जाओ। उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता। रिसेंटली तो एक मैं पढ़ा था डिवोर्स हो गया था इसी पे, अच्छा। सब सही है, बट आई नहीं, या या सो कमिंग बैक टू स्नोरिंग, इफ इट्स अ हेल्दी मेल और फीमेल, मतलब ज्यादा ओबीज ओवरवेट नहीं है, यूजुअली स्नोरिंग ओबीज लोगों में तो डेफिनेटली होता ही है। सो फर्स्ट थिंग, लूज वेट। ओके स्पेशली हेड एंड नेक पे जो आपका एक्स्ट्रा वेट है वो आपने लॉस करना ही है। गिव योर सेल्फ 3 months 4 months, लूज वेट एंड देन सी हाउ योर स्नोरिंग इज। ओके एंड स्नोरिंग का ना एक बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे पड़ता है। सो मेटाबॉलिकली बहुत डिजीजेस होने लगती हैं बिकॉज ऑफ स्नोरिंग। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई स्नोरिंग हैपेंस एंड व्हाई इट हर्ट्स द बॉडी। स्नोरिंग इज, जब लाइक वी डिस्कस, देयर आर टू इनलेट्स, नोज एंड योर माउथ। नोज ब्लॉक होता है तो आप माउथ से ब्रीथ करते हैं, माउथ से ब्रीथ करते हैं, विच इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल ब्रीदिंग इज थ्रू द नोज। तो हमारे मुंह में जब वो हवा जाती रहती है, मसल्स वाइब्रेट करते हैं एंड दैट फ्लैपिंग लीड्स टू दैट नॉइज, जिसको हम स्नोरिंग नॉइज कहते हैं। एक्चुअल डिजीज इज स्लीप एप्निया। तो व्हाट हैपेंस इज कि हम तो सांस ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, स्नोरिंग हो रहा है, चलो ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी में। फिर एक पॉइंट आता है कि हमारा ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि डीप स्लीप में जाना है, ब्रेन ऑल्सो हैज टू रिलैक्स। ब्रेन रिलैक्स होगा, बॉडी रिलैक्स होगा, सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। एंड व्हेन दैट हैपेंस इज कि वो रास्ता ही बंद हो गया, बिकॉज वो रास्ता तो मसल से बना हुआ है। मसल रिलैक्स हो गया, रास्ता पहले से ही छोटा था, वो बंद हो गया। सडनली पेशेंट उठता है, उठेगा, वो पासे पलटेगा, 2 मिनट के लिए नहीं स्नोर करेगा, एब्सोल्युटली फाइन। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन चला गया ना बॉडी में, क्योंकि बॉडी उठ गई, रास्ता खुल गया, ब्रेन उठ गया, ऑक्सीजन चला गया, चलो वेरी गुड, सब लोग खुश, हमारा ब्रेन भी खुश। सडनली ब्रेन इज लाइक अब मैं सोता हूँ, वो सोने जा रहा है, रिलैक्स कर रहा है, मसल्स भी रिलैक्स कर रही है, फिर से बंद हो गया। फिर से सो ये साइकिल चलता रहता है। आजकल सब लोग एप्पल वॉच पे अपना रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मेरा इतने एपिसोड्स हुए, इतने एपिसोड्स हुए। किसी से पूछेंगे कि अपनी स्नोरिंग रिकॉर्ड करके आए, तो वेरी टिपिकल, थोड़ी देर आवाज आएगी, सडनली उठ गए, फिर कोई स्नोरिंग नहीं होगी, फिर सडनली फिर से स्नोरिंग होगी। इसेंशियली क्या हो रहा है कि आपका ब्रेन कभी सो ही नहीं रहा है, कभी रेस्ट ही नहीं मिल रहा है, आपके बॉडी को भी रेस्ट नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है रात भर, यस तो वो ऑक्सीजन डेप्रीवेशन होता रहता है। अब ये चीज एक रात को तो नहीं फर्क पड़ेगी आपको, 2 दिन में भी नहीं फर्क करेगी, लेकिन ओवर 5 years 6 years ये क्रॉनिक स्ट्रेस, क्रॉनिक फैटीग, क्रॉनिक इंसोम्निया, स्लीप डेप्रीवेशन, इट लीड्स टू अर्ली ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑल मेटाबॉलिक डिजीजेस। अब वो उस टाइम पे पता चला, अच्छा शुगर भी हो गई जी, बीपी भी हो गई जी, ये थोड़ी पता था कि पहले स्नोरिंग ट्रीट कर लेते। ओके, सो चलो वेरी कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुंचे? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नोरिंग हो रहा है, गेट चेक्ड, गेट योर सेल्फ चेक्ड। ईएनटी चेक करेगा, आपका नोज चेक करेगा, नोज में ब्लॉक तो नहीं है, अगर ट्रीट कर सकते हैं वेरी गुड। बहुत सारे चेक्स होते हैं। तो स्लीप स्टडी किया जाता है, स्लीप स्टडी आपके घर में ही हो जाता है, अब तो हाँ, अब तो घर में हो जाता है। अल्लाह बेसिक एक स्क्रीनिंग स्लीप स्टडी आपका हो जाएगा टू अंडरस्टैंड कि कितना सिवियर है। अगर इतना सिवियर नहीं है, वेट लॉस कैन हेल्प यू, प्लीज डू इट। अगर ज्यादा सिवियर है तो हाँ, स्लीप एंडोस्कोपी करते हैं अच्छा ओके, टू अंडरस्टैंड कि नोज में ब्लॉक है, गले में ब्लॉक है। स्लीप एंडोस्कोपी से पता चलता है कि आप पे सर्जरी का इफेक्ट होगा भी या नहीं होगा, बेनिफिट है या नहीं है। Okay. अगर आप सर्जिकल कैंडिडेट नहीं हो तो फिर ऑब्वियसली सर्जरी इज द ऑप्शन। इफ यू आर नॉट अ सर्जिकल कैंडिडेट तो सीपैप मशीन्स आती हैं, ऑटो सीपैप मशीन्स आती हैं, विच आर देन प्रिस्क्राइब टू हेल्प इन द स्नोरिंग। ऑलराइट ऑलराइट, So lot of options, but the point is कि snoring is not to be treated लाइक इन योर एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा किस चीज से आपने देखा है, मतलब वाज इट बिकॉज द ओवरवेट पार्ट? mostly yes, मोस्टली यस, but ऐसा नहीं है, young patients भी आते हैं who are lean and fit but still they snore। बट आपके पास तो आई वो सेगमेंट रहा है ना, हाँ, अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो obesity, हाँ, overweight, obesity,
major reason. Acha, also snoring when you are very tired is normal. Yeah. That is okay. अगर आप one off snoring कर रहे हैं, that is not a cause of concern. If you're कभी party किया, बहुत drink कर लिया, आपने snore कर लिया, when you're very tired, you're snoring, that is okay. I'm not talking about that. I'm talking about snoring when it's happening on an every night basis. Yeah. Right. या प्लेन में जाते हैं, कान में दर्द हो रहा है, जस्ट टेल मी वन सिंपल थिंग जिससे वो सही हो जाए. सो एक तो पहली बात, जब कोल्ड डिपेंड्स, दो सिनेरियो हैं. नॉर्मल इंसान फ्लाई कर रहा है और कान बंद कर रहा है तो आप च्युइंगम चबा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, दैट टाइम इट हेल्प्स. ऑल्सो देर इज अ मैनूवर जो प्लेन में भी सिखाया जाता है, उसको वेलसाल्वा मैनूवर कहते हैं, इन विच यू प्रिटेंड लाइक यू आर ब्लोइंग अ बलून विद योर नोज क्लोज्ड एंड योर माउथ ऑल्सो क्लोज्ड. सो इसेंशली आप एक डीप इनहेल करके, नोज पिंच करके, माउथ क्लोज करके, यू आर पुशिंग एयर इनटू योर ईयर्स, उससे वो ओपन हो जाता है. मगर इफ यू हैव कोल्ड एंड यू आर फ्लाइंग, उस टाइम तो ईयर ब्लॉक होना ही होना है. बहुत गंदा वाला होता है. गंदा वाला होता है. उस टाइम पे ये नहीं करना. सो उस टाइम पे इस मैनूवर करने से वो वर्स हो जाता है. राइट. सो एट दैट टाइम chewing gum helps. Maybe taking an anti-allergic before the flight will help. Ideally तो कोल्ड के टाइम पे फ्लाई नहीं करना चाहिए, बट हर बार इट्स नॉट पॉसिबल. कई बार तो हो जाता है. हाँ, विद फ्लाइट्स वो कॉमन एवरी अदर डे. तो उस टाइम पे आप लेकिन पानी खूब पियो. मेक श्योर यू आर हैविंग इनफ च्युइंग गम्स एंड लॉलीपॉप्स. बच्चों के लिए एज अ रूल तो उनको लॉलीपॉप च्युइंग गम दे देना चाहिए उस टाइम पे. क्योंकि उनको तो ये मैनूवर करना भी नहीं आएगा, एंड इनवेरिएबली कान बंद होगा ही होगा. इफ इट्स एन इन्फेंट, लोग बोलते हैं कॉटन डाल लो, उससे क्या? सो कॉटन डालने से Not- नो, इट इज नॉट Okay. रेकमेंडेड, Oh, बिकॉज okay. उससे और प्रेशर डिफरेंस बढ़ जाता है. वाई ईयर्स आर गेटिंग ब्लॉक्ड ड्यूरिंग चेन एल्टीट्यूड. हाँ, इट कैन बी फ्लाइट, इट कैन बी स्कूबा डाइविंग, क्योंकि एयर प्रेशर चेंज हो रहा है. तो आपको वो एयर प्रेशर इक्वलाइज अंदर से करना होता है रादर देन आउटसाइड. तो ये आया कहाँ से था कॉटन देने का? इनफैक्ट एयरलाइंस आल्सो गिव कॉटन बट्स. I don't know, it's not recommended. Wow, wow, wow. In fact, I'll add something here. तो lollipops and chewing gums maybe with the older kids, but जब हम छोटे बच्चों को लेके जाते हैं ना, newborn especially and up till an infant, the one of the very good things is उनको उस टाइम पे breastfeed करो, especially Absolutely. take off and landing के time पे. Yeah. Absolutely. So recently I was reading about these clips that are available जो आप nose के ऊपर लगा लेते हो और फिर snoring कम हो जाती है. Like what are they? आँखों का, but a lot of eye wash. Yeah. Okay. Because they don't, they can't really fix a blockage. अगर आपकी नाक में हड्डी टेढ़ी है या कोई मांस फूला हुआ है तो उसको वो क्लिप नहीं ठीक कर सकता है. इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल. अगर ठीक है बहुत लोअर लेवल का स्नोरिंग है तो फिर भी एक ना नेजल डायलेटर्स आते हैं, वो फिर भी कैन बी यूजफुल इन वेरी सिलेक्ट पेशेंट्स की सिर्फ थोड़े से वैल्व कोलैप्स की वजह से है या माइनर उनको स्नोरिंग है, वेट लॉस करेंगे थोड़ा बेटर हो जाएगा. मे बी जस्ट दैट इज स्टिल लिटिल बिट यूजफुल, बट द स्ट्रिप बट ये जो स्ट्रिप्स है डोंट दे अलाइन, लाइक मे बी वो टाइट होके अलाइन करते हो पैसेज को. आई मीन एटलीस्ट अगर नोज में पर्टिकुलर कोई ब्लॉकेज है तो उसको हेल्पफुल होना they चाहिए. can't really pull out your, they can't widen the passage ना. जो एयर पैसेज अंदर से नैरो है वो बाहर से तो आप नहीं खोल सकते, आप फिजिकली इसको ओपन नहीं कर सकते हो. ओके. है ना. ऐसे भी स्किन करके सारा टाइम इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ओके. इट माइट वर्क टेम्पररी बट नथिंग कैन चेंज दैट ओके. anatomy. तो very very unlikely that they'll benefit. Okay. Thank you so much for clearing out so many doubts that common man generally has, and I'm sure this episode will be of great help to a lot of people here. Absolutely, I really think so too. You picked out a lot of common questions that people come with, and it's difficult to answer on an everyday OPD basis. So busy reading them. So I think this would be a great help. Thank you so much for having me. Thank you so much, And Asuna. please subscribe. Thank you. All right, thank you. अगर आज की कॉन्वर्जेशन आपको हेल्पफुल लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए, बिकॉज राइट इन्फॉर्मेशन ही बेस्ट प्रिवेंशन होती है. फॉर मोर साइंस बेस्ड पेरेंटिंग, चाइल्ड हेल्थ और एक्सपर्ट कॉन्वर्जेशंस, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू डॉक्टर डैट टॉक शो, like the video, and press the bell icon so you never miss an episode. मैं हूं डॉक्टर गौरव निगम.
मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर एक्सपर्ट एंड अनदर मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन।